Good morning, all of you. And here is an effective session from which one question is guaranteed in each and every session of your JEE April 2024. And here we go with sets and relations. Before I go further, a disclaimer is if you are giving proper attention and absorbing the solutions of all these problems, which was asked in Jan session, it is more than sufficient. It's basically necessary and sufficient information to do any problems of upcoming sets, provided you are already acquainted with the language of the sets, right? So with minimum prerequisite, I'll try to solve all these questions. So let's start with the first question. XYZ is integer and they have given XYZ is greater than equal to 0. So they are non-negative integer. It can be 0. Such that x plus 2y plus 3z equals 42 is quite a standard problem. Find the number of non-negative solutions. Now clearly the coefficients are not same, so you can't use a star bar technique. It can be done by two ways. One is counting, other is by generating function. I'll show you just a hint of generating function, but that's not effective for this problem. So let's go by counting. Now even when you count, whether I'll start with the value of x first or y first or z first, it's better to start with z, playing with the z values. Why? Because that will exhaust soon because it is having higher coefficient. What I mean is, let's say if you put z equals 1, z equals 2, then 3z will exhaust fast rather than putting x equals 1, 2, 3, 4. If you start putting x, you have to take 42 cases. X, in fact 43. X can run from 0 to 42. But if you start taking z, you will have to take only few of the cases, like 15 cases. Okay, because 14 3 42. So z will go from 0 to 14. Okay, so that's the idea. So let's start with playing with z. If z is 0, 1, 2 till 14 equals. So if z equals 0, clearly you can see x plus 2y is going to be 42. So I'll just give you a few solutions. And now we'll play with y. And it's quite easy because for y0, we'll have some value of x 42. And y can go up to 21, right? So from here we'll have 22 solutions. So 0 will give 22 solutions. Similarly 1 you can clearly see we'll have 39. So if x plus 2y gives 39, y can clearly take a value of 0 and corresponding x will have a value. And it can go up to what? Up to 19, right? Because if it is 19, x is 1. If y is 20, it's not allowed because then x will be negative. That's not fine. Okay, so now you have already got the feel of what's happening. If it is 39, 39 by 2 is what? 19 point something. So you have to take greatest of that. Why I'm taking greatest? Because more than 90 is not possible. So decimal part you can ignore. So from 1 we'll have 19 solution. From 2, if we'll take z equals 2, you get 36. So 36 will give what? 36 by 2 is 18. So 0 to 18 means 19 solutions. So if it is perfectly, whenever it is perfectly coming, we are having 0 to 19 it was. So for z equals 1, we are having 20 solutions. 0 is counted, okay? Don't miss that. For 2, we'll have 19 solution. Then again 17 solution. Then 30. So 30 divided by 2 is 15 and plus 0 wala is a 16 solution. So like this you can count all of them. And the number of solution is 22 plus 20 plus 19. Next we'll give 17, 16, z5 14, 6 13, 7 11, and 10, 8, 7, 6 will not come. 5, 4, 2, again 3 will not come because 13 will give 2 solutions. Z13 will give x plus 2y3 and x plus 2y3 will give 1 point something, so 0 and 1. And then we'll have 1. And if we add this, 160, 169. Okay, so the answer for this problem is 169. The other way of doing this problem is using generating function. Those who know, just a small hint for them. So you can think of x is coming from the box of 1, p to the power 1, which means p ka power 0 plus p ka power 1 plus p ka power 2 and so on. Now to get 2y is a multiple of 2, so that can come from the box of p to the power 0, p2 plus p4 and so on. And 3 is multiple of 3z is multiple of 3, right? So p to the power 0, p cube plus p6 and so on. Now why I'm doing this on the earth is basically coefficient of p to the power 42 in this expression will be same as 169. अब देखो कैसे, for those who are just interested.
if you'll see the coefficient of p to the power 42, what are the ways of creating 42? One way will be when, let's say, p ka power 0 is coming from the first box. Okay, p ka power 42 is coming from the second box, and again p ka power 0 is coming from the third box. Then you see on the head automatically 0 plus 42 plus 0 will come. So whatever is counted on the head, that is in fact the solution of this equation. जैसे एक और देखो, सपोज मैं x का वैल्यू जैसे यहीं पे, अगर x का वैल्यू सपोज इफ आई टेक 2, okay, or y का वैल्यू इफ आई टेक let's say 2, so what will be the x values? It's 438. Okay, so 38 and 2. So if I take from the first box, let's say z equals 0 means p ka power 0, and then p to the power 38. So second box is giving power 38 and third box is giving 2. Okay, so still it's a way to create the solution, right? Because second box can give 38, x equals 38, and then that will give 4. Okay, p ka power 4. So one of the solution is again 0, 38, 4, and that's fine. That's clearly. So every solution decodes to this. Now some of you might feel, even if you are doing this, how to count this? Okay, so this is from the GP, 1 by 1 minus p you can write. This is 1 by 1 minus p square, and third term is 1 by 1 minus p cube. And now again, it's like coefficient of p ka power 14 in this. So you multiply, okay, and then try to simplify this or using multinomial theorem, you'll get this. But that becomes very complicated. So in these kind of questions of your JEE mains and even advanced, do not use this generating function approach. Use simple counting, because there is no closed formula. Okay, because fundamentally in generating function also you are counting like this. Okay, so there are cube roots of unity techniques where it can be handled, but that's not worth in the examination. Anyway, question 2. A is a set 1 to 20. R1 and R2 with two relation on A such that R1 is a relation between two numbers A comma B. In fact, two elements from this set. Any relation is defined on the elements of that set. Okay, so how R1 is related? R1 is a relation where A and B is related such that B is divisible by E. For example, 3 is divisible by 1. So 3 by 1 is integer. 6 is divisible by 2 and 6 is divisible by 3, right? R2 is a relation when A is integral multiple of B. It means A is B, 2B, 3B and so on. Number of element in R1 minus R2. तो सबसे पहले R1 को देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, उससे भी पहले R1 माइनस R2 का क्या मतलब है? अगर मान लो इस रिलेशन में इफ आई रिप्रेजेंट R1 एज दिस सेट and R2 be number of elements in this set. So R1 minus R2 means elements which is in R1 but not in R2. Means ये वाला रीजन आया, राइट? तो अब ये तो तुम क्लियरली बोल सकते हो R1 minus R2 is same as R1 minus R1 intersection R2. क्योंकि many times instead of finding R1 and R2 separately, it will be easier अगर R1 और R2 एक साथ हम फाइंड कर लें. अब देखो, in fact finding R1 and R2 together is very easy. Why? Because if B is divisible by A and A is integral multiple of B, it means B is divisible by A and A is divisible by B. It means दोनों को इक्वल होना होगा, ठीक है? क्योंकि A B को डिवाइड कर रहा है और B A को डिवाइड कर रहा है. सपोज मैं कोई भी पॉइंट 2 और 3 ले लूँ, तो ये तो कोई किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है. सपोज 2 6 ले लूँ, ठीक है? सो 2 इज डिवाइड इन 6, लेकिन 6 तो 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है? सो इफ A इज लेमडा B एंड B इज म्यू A, ये तो पक्का हो गया ना, A इक्वल टू लेमडा म्यू A, ठीक है? तो लेमडा और म्यू को क्या होना होगा? इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, लेमडा और म्यू को 1 होना होगा. एंड सिंस लेमडा म्यू इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेमडा इज 1 एंड म्यू इज 1. तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज वेरी इजी. तो ये कितना एलिमेंट होगा? A और B जब इक्वल हो जाएगा तो 1 1 2 2 3 3 20 20. तो ये तो 20 आंसर है इसका. व्हाट अबाउट R1? नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन R1? दैट्स अगेन क्लास 10 लेवल प्रॉब्लम. क्योंकि देखो, सिर्फ प्रॉब्लम समझना है. रिलेशन R1 है A कॉमा B सच दैट B A को डिवाइड करता है. तो चलो हम B का वैल्यू फिक्स रखते हैं और A के साथ प्ले करते हैं. सो इफ़ B इज़ 1, तो इससे कितना आएगा वो काउंट कर लेंगे. इफ B इज़ 2 विथ A कॉमा 2 आई विल काउंट, विथ A कॉमा 3 आई विल काउंट. ऐसे करते करते A कॉमा 20 आई विल काउंट. नाउ सम ऑफ विल टेक, सर ये तो बहुत टाइम लगेगा. नहीं, इट विल टेक ब्रो मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, क्योंकि ये काउंटिंग बहुत फास्ट हो जाएगा. देखो कैसे. नाउ 1 डिवाइड से तो A का क्या वैल्यू आएगा? ये तो पूरा 20 टेका 20. 2 डिवाइड से तो कितना आएगा? 20/2 10. अब तो समझ गए ना. 3 डिवाइड से 20/3. सो ये अप टू लाइक A का वैल्यू क्या आएगा? सच दैट 3 डिवाइड से, सो A मल्टीपल ऑफ 3 6 ऐसे 18 तक जाएगा. सो 20/3 6 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 18 के बाद विल नॉट गेट, तो दैट विल गिव अ वैल्यू ऑफ 6. नेक्स्ट इज गिविंग 5, फिर 4 3 2 2 2 2, फिर कितना आ जाएगा?
1 1 1 1 1, क्योंकि देखो 19 डिवाइड्स 19 ही होगा कि आफ्टर 10 जो भी आएगा 11 डिवाइड्स 20 एक ही मल्टीपल है 11, 22 इज क्रॉसिंग द विंडो, सो 11 से 20 तक एक ही आंसर आएगा। सबको ऐड कर लो, ऑल दिस समेशन इज गिविंग हाउ मच 30 36 160 नो हाउ मच 66 ना, yes 66। तो व्हाट इज आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम 66 minus 20 which is 46 पेयर। ठीक है, अब ये 46 पेयर में तुम कोई भी पेयर अगर उठा लो तो ये कैसा पेयर है, जैसे कि 2,2 देखो ये दोनों रिलेशन ये R1 में है लेकिन R2 में नहीं है। R1 में है क्योंकि ये B इज डिविजिबल बाई है, ठीक है। R2 में नहीं है क्योंकि E इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B, तो उसको निकाले क्योंकि R1 माइनस R2 हमें चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो उठा है दिस विल नॉट बी द पार्ट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज कंसिडर द रिलेशन R1 एंड R2 डिफाइंड एज ए R1B। अब देखो कोई भी रिलेशन एक सेट पे डिफाइन करता है, यहाँ तो तुम बोलोगे सेट डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन है इनडायरेक्टली। देखो बता रहा है R1 इज अ रिलेशन सो दैट A इज रिलेटेड टू B, A R1B मीन्स A रिलेटेड टू B। दीज आर फेंसिबल सिंबल्स, इससे डरना नहीं है। अब कैसा रिलेशन है A और B में, कैसा रिलेशन होगा, तो कुछ गार्जियनशिप होगा ना, हर एक क्वेश्चन में वही फंदा है। सो दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1, तुम सोच सकते हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 है और A भी रियल है, मतलब ये सर्कल पे है। एंड AB इज रिलेटेड टू CD। अब दूसरा रिलेशन R2 ले लिया, R2 कैसा रिलेशन है, अब ये दो समाज के बीच में रिलेशन है। ठीक है, R1 मतलब सोचो खुद के फैमिली मेम्बर का रिलेशन है, चाचा जी और भैया का जो रिलेशन है। R2 है इसके से फैमिली और उसके फैमिली में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो कुछ भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट A प्लस डी B प्लस C फॉर ऑल A कमा B एंड C कमा D बिलोंगिंग टू N क्रॉस N। तो अब पता चला किस सेट से A और B उठाया गया है और C और D कहाँ से उठा गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तुमसे पूछ रहा है R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R2 इक्विवेलेंस और बोथ। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन विच इज सिमेट्रिक, ओके, रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इफ A बिलोंग्स टू सेट A देन A कॉमा A मस्ट बिलोंग्स टू द रिलेशन। ठीक है, तो अगर गोलू सेट में बिलोंग करता है तो गोलू कॉमा गोलू, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज, ये भी हो। सिमेट्रिक क्या है, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू द रिलेशन R देन B कॉमा A मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर A कॉमा B रिलेशन R से बिलोंग किया तो B कॉमा A को भी रिलेट होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर A कॉमा B इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशन सो देयर इज नो ओके ऑब्लिगेशन फॉर B कॉमा A टू बिलोंग। मतलब अगर A कॉमा B नहीं बिलोंग करता है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू दैट रिलेशन देन B कॉमा A मस्ट बी हैविंग दैट रिलेशन। एंड व्हाट इज सिमेट्रिक, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R and B comma A is also a part of that relation, then that must imply the transition element B, which means B belongs to R होना ही पड़ेगा। Let's check if it is reflexive relation R1. So is A comma A belonging to that relation? So if I'll take A square plus A square equals 1, clearly A equals 1 by root 2. So that's not a natural number, right? So ये तो पक्का है जो R1 is not reflexive. So if it is not reflexive, अब इक्विवेलेंस का कोई कंडीशन ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसा ही गया। ठीक है, बोथ आर इक्विवेलेंट, ये भी ऐसा ही गया। राइट, लेट्स कम टू R2। व्हाट अबाउट R2, A प्लस D इक्वल्स B प्लस C, राइट। सो फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंगिंग टू C। तो देखो लाइक इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स A B and C D, they are related, A comma B and it is related to C comma D. So under what condition this will be reflexive? It means for every A comma B must be related to A comma B. ठीक है, कि now we have two elements. अब ऐसा नहीं सोचना जो A comma B और A को B कर दें, because now you are looking at this as a whole thing. So maybe the Ram family is related with Ghansam family. So for reflexive, Ram must be related with itself. It means if I'll take A as C and B as D, then still it should be true. Right? So R2 in that sense, if I take A equals C and B equals D, then definitely it's true. So that's fine. Now is it symmetric? How do we check for symmetricity? So let's check if AB is related to C comma D. Does it imply C comma D is also related to A comma B?
उल्टा, तो ए बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी कैसे किया, ए प्लस डी फर्स्ट एंड लास्ट इज सेकेंड लास्ट समेशन, ए प्लस डी इज बी प्लस सी, डज इट इम्प्लाइज बी प्लस सी इक्वल्स ए प्लस डी, ऑफ कोर्स यस, इट्स ऑल्सो सिमेट्रिक, देयर इज नो डाउट इन दिस। इक्विवेलेंस का चेक कर लेते हैं। अब ए बी सी डी से रिलेटेड है, अगर ए बी इज रिलेटेड विद सी डी and let's say CD is related with EF, then can we tell from here AB is related to EF? It should be true for all such pairs, then only we have to tell, then only we can conclude is equivalent। अगर एक भी पेयर इसको वाइलेट कर दिया फिर इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो देखो A अगर इससे रिलेटेड है तो सम ऑफ मीन्स एंड सम ऑफ एक्सट्रीम विल बी इक्वल्स A प्लस डी इज बी प्लस सी, यहाँ से आएगा C प्लस एफ इक्वल्स डी प्लस सी। तो क्या इस दोनों इक्वेशन से डज इट इम्प्लाइज A प्लस एफ इज डी प्लस ई, ये चेक करते हैं। तो यस इट डज इम्प्लाई, क्योंकि दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए तो डी और डी गया, सी और सी गया, तो ये तो ऑब्वियस है। इसका मतलब R2 जो है वो तो एक इक्विवेलेंस हो गया, बिकॉज बोथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो व्हाट वी कैन टेल, R2 only R2 is an equivalence relation, right? R1 is not reflexive and neither is transitive. Symmetricity हो रहा है R1 because if AB belongs to N and B is also belongs to N, क्योंकि अगर पॉइंट A, B सर्कल पे है तो B, A भी डेफिनेटली सर्कल पे है, ठीक है, ये तो सिमेट्रिक है। A, A सर्कल पे नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। एंड लेट्स से बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल्स 1, दैट डज नॉट गारंटीज ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल्स 1, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये। Clear? It might be possible for some value, but we want it to be true for all such pairs of A, B and B. So I hope this is a good question and you have understood the meaning of the question and hence solution. Once you know the meaning, the solution is obvious. Next question फिर देखो, एक set S define किया गया है from 1 to 10 और तुमसे क्या पूछ रहा है, suppose M is a set of all subset of S, then the relation are A, B. What is relation R? It's a relation in two subsets A and B such that A intersection B is not phi and AB is a member of all subset. So what is the set of all subset of S? तो अपन थोड़ा फील ले लेते हैं, phi C M, तो इसमें तो phi nothing is also one of the subset, या फिर 1 2 3 से 10 तक, then ये भी आ जाएगा 1, 2 और 1 2 3 ये भी ऐसे करते करते, so 1 2 till 10, so it's basically power set. Okay, so how many elements will be there in M? 2 ka power 10, because any element 1 will be either present or absent, 2 will be present or absent, 3 will be present or absent, so in total 2 ka power 10 possibilities are there to create a subset. Now if I take any two of them, so just for experimentation, suppose 1 or 2 उठाए, so these two are subsets, so does it satisfy? Yes, because 1 intersection 2, ये तो 5 हो गया, तो ये satisfy किया ही नहीं, it means 1 and 2 is not a part of this relation, right? Now some of you will tell sir what is A belonging to M, अरे ये इस सेट M का हिस्सा है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं 1 उठाया तो दूसरा क्या उठाऊँ सो दैट वो एम्प्टी नहीं होगा, तो हमको 1 और 2 ही उठाना होगा। इज दिस क्लियर? सो वन सच रिलेशन इज 1 and 1 2 because that's not empty. Maybe if I take 1 2 3 as one subset A, then B can be anything having at least one element 1 2 3. So I hope this is clear. Okay, so with this feeling now you can clearly check reflexive, whether it's reflexive or not. So suppose if A1 is the element of that M, okay, तो क्या 1, 1 that belongs to the relation? नहीं, अगर हम इसमें से A उठा ले, so A, A, what is A intersection A? That is clearly not phi. Okay, so because 1 intersection 1 is 1, so yes, the relation is reflexive. ठीक है, ऐसा आपको लगेगा। अब यही ट्विस्ट था, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर एवरी एलिमेंट इन द सेट एस, ओके, फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट एवरी पॉइंट शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखो 1 और 1 तो रिलेटेड है, क्योंकि 1, 1 जो होगा 1, 1 विल हैव 1 इंटरसेक्शन 1 नॉट 5, लेकिन व्हाट अबाउट 5? व्हाट अबाउट 5 ब्रो? 5, 5 मीन्स 5 इंटरसेक्शन 5, ये तो फिर 5 हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, बिकॉज इट्स ट्रू फॉर 1 2 3 एंड ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट वन वैल्यू विच इज एम्प्टी सेट, दैट्स वाई दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ।
नेक्स्ट चलो सिमेट्रिक पे चेक करते हैं. अब सिमेट्रिक के लिए A इंटरसेक्शन B should not be phi. Okay, does it imply B intersection A is not phi? Clearly yes, because if there is something common between A and B, there is something common between B and A. Same language, so it's clearly symmetric. ठीक है. Now what about, so first is gone, reflexive तो है ही नहीं. अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं. If A intersection B is not phi and B intersection C is not phi, so can we conclude A intersection C will guarantee be not phi? इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? आप चेक कर लो एक वेन डायग्राम से. सपोज A और B के बीच में कुछ कॉमन है, ठीक, और B और C के बीच कॉमन है. तो देखो A और C के बीच में तो कुछ कॉमन नहीं आया. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये गया. इट इज फंक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज सिमेट्रिक ओनली. Okay, so this is also a good question, and the point was now they have defined a relation between two sets. Here they have defined a relation between again two different families, because mostly and in the first question they have defined a relation between two elements of the same families. तो relation कैसे भी define कर सकते हो आप 3D में भी कर. relation on Z cross Z. अब Z cross Z क्या है? इंटीजर के वर्ल्ड से. Z cross Z means Z is 1 2 3 4 5 6 plus minus 1 plus minus 2 ऐसा कुछ भी. So that cross that one, you know, so 0 plus minus 1 plus minus 2 ये Z का वर्ल्ड. so when I take Z cross Z it means एक एलिमेंट इंटीजर से लाया गया है, फिर दूसरा भी उसी इंटीजर वर्ल्ड से. so 0,1 minus 1,2 this is the meaning of Z cross Z. 3,2 is basically lattice point having both integer coordinates. if it is R cross R then कुछ भी हो सकता है. 0√2 it means R cross R. what is R cross R cross R? 3D world means first element of that relation is from R, second is from R, third is from R. what about Z cross R? फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम इंटीजर 1 एंड सेकेंड कुछ भी रियल से आ सकता है. ठीक है, तो इसको समझो. अब कैसा रिलेशन है? इज डिफाइंड बाय अगेन टू फैमिली. देखो एक ऑर्डर्ड पेयर से दूसरे ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ ए डी माइनस बी सी डिक्यूल बाई 5 देन रिलेशन इज. फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन और सिंपल. Again, if AB is related to CD in this way, such that AD minus BC means वाले minus this is divided by 5. So is it reflexive? अब reflexive के लिए फिर अगर ये family और वो family equal हो जाता, it means if A becomes C and B becomes D. So will it also be possible? So A becomes C and B becomes D. तो AD minus BC and that this case what will happen? A को C बना दो और B को D बना दो. So this is 0. Is 0 is divisible by 5? Clearly yes, right? Because 0 by 5 is 0. So it's fine. It is reflexive, right? It is reflexive. Next is symmetric. तो फिर से चेक कर लेते हैं. If AD minus BC is divisible by 5, means this is some 5 lambda. So can we tell CD is also related to AB? It means BC minus AD is also related. Of course yes, because BC minus AD is going to be minus 5 lambda. ये भी तो इंटीजर है, तो इट्स सिमेट्रिक ऑल्सो. व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? अब ट्रांजिटिव में देखो या तो आप कोई भी एक स्पेशल केस लेके चेक कर सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन से, बिकॉज इवन इफ वन सैम्पल डजंट वर्क, और या फिर तुम जनरलाइज फील कर सकते हो. सो फॉर ट्रांजिटिव इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, so for transitive if AB is related to CD and CD is related to EF, so what does it mean? AD minus BC is 5 lambda. Similarly CF minus ED is 5 mu. So from here can we guarantee is AB is related to EF, which is AF minus B is also some 5 गोलू, where गोलू is integer. ऐसा कर सकते हैं कि हम AF minus B. अब ट्राई करो AF डायरेक्टली इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके तो आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे भी तुम जेई वाले क्वेश्चन में समझ सकते हो, क्योंकि सिंपली अगर इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन और बेसिक मैनिपुलेशंस अगर ये आ गए तब तो सही है, नहीं तो डेफिनेटली ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ऐसा गारंटी नहीं है ए एफ माइनस बी. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ के बी के साथ ई आ ही नहीं रहा है. ठीक है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है. यू कैन गिव वन और एग्जाम्पल, जैसे काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो. 3 1 इज रिलेटेड टू 10 5. ये तो सही है, क्योंकि देखो 15 माइनस 10 एंड 10 5 इज रिलेटेड टू कुछ भी एग्जाम्पल सोच लो, जैसे 1 1, क्योंकि 10 माइनस 5 5 ये भी है. लेकिन 3 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1 1, क्योंकि 3 माइनस 1 2 एंड 5 2 डजन डिवाइड 5. ठीक है, तो यहाँ से दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस. तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन 1. नेक्स्ट,
Next, R is the smallest equivalence relation of 1, 2, 3, 4 such that 1, 2 and 1, 3 is a subset of R. Now what is equivalence relation? Relation which is symmetric, transitive and reflexive. सबसे पहले कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट पे जो भी बनेगा उस पे वन कंडीशन इज गारंटीड. क्या वो गारंटीड कंडीशन होगा? इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, इट मस्ट बी सिमेट्रिक, मस्ट बी ट्रांजिटिव. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए इफ वन इज प्रेजेंट 1,1 तो उस इक्विवेलेंट रिलेशन में 1,1 तो होना ही होगा उस रिलेशन में. फिर 2,2 होना ही होगा, 3,3 होना ही होगा, 4,4 होना ही होगा. ठीक है, अब ये भी एक बैलेंस रिलेशन है तो हमको मिनिमम, लेकिन मुझे चाहिए 1,2 भी होना चाहिए उस रिलेशन में एंड 1,3 भी. अब देखो इफ 1,2 इज देयर सो दैट विल ऑटोमेटिकली डिमांड 2,1 क्योंकि सिंस इज इक्विवेलेंस इट मस्ट बी सिमेट्रिक. ठीक है, अब 1,3 इज देयर सो 3,1 का भी डिमांड आ जाएगा. ना इफ 1,2 एंड 2,1 इज देयर दैट विल डिमांड ट्रांजिटिविटी के कारण 2,2. ठीक, सो इनफैक्ट दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिस्टम. क्लियर? तो अभी आपको कितना लग रहा है यहाँ से? 8. अब बताओ 1,3 इज देयर, 3,1 इज देयर, सो दैट विल डिमांड ऑफ कोर्स बिकॉज 3 यू कैन फॉरगेट इन बिटवीन 1,1 इज देयर. लेकिन अब 2,1, अब देखो 2,1 और 1,2 है तो इससे भी कितना आएगा? 2,2 दैट्स देयर. But if we'll see 2,1 and 1,3, so if 2,1 is present in the system, 1,3 is present in the system, from transitivity 2,3 is present in the system होना ही चाहिए. It means I have to invite 2,3 also. अब अगर 2,3 का इन्विटेशन दे दिए तो 3,2 को भी आना ही होगा सिमेट्रिसिटी के लिए. अब फिर चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए कैन वी हैव न्यू एलिमेंट. अब नहीं हो सकता है क्योंकि ऑल दिस अब 2,3 3,1 डिमांड्स 2,1 प्रेजेंट इन द सिस्टम, 3,2 2, समथिंग डिमांड्स प्रेजेंट इन द सिस्टम. तो यही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा. कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये सिंपल क्वेश्चन था. यहाँ पे था whenever गोलू कोमा भोलू इज प्रेजेंट, भोलू कोमा गोलू मस्ट बी प्रेजेंट. whenever गोलू कोमा भोलू इज प्रेजेंट, भोलू कोमा बिक्की इज प्रेजेंट, गोलू कोमा बिक्की मस्ट बी प्रेजेंट. ये ट्रांजिटिव है. एंड फॉर एवरी गोलू प्रेजेंट इन द सिस्टम, गोलू कोमा गोलू मस्ट बी द पार्ट ऑफ द रिलेशन. और देखो सिमिलर प्रॉब्लम फिर यहाँ पे भी पूछ दिया है, नंबर ऑफ सिमेट्रिसिटीज ऑल्दो इट्स नॉट इक्वल. नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ 48 स्टूडेंट, 3 सब्जेक्ट्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट. तो आप ये खुद से क्वेश्चन पढ़ो एक बार. सो 48 स्टूडेंट्स आर देयर. तो सपोज इफ आई रिप्रेजेंट दोज 48 स्टूडेंट्स विद दिस सेट. ठीक है, अब मैथ्स में पास करने वाले को M ले लो, फिजिक्स में सपोज P एंड केमिस्ट्री में सपोज C. सो दीज आर 3 सेट्स आई एम डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्टली. व्हाट डिटेल? मैथ फिजिक्स इट वाज फाउंड ऑल स्टूडेंट्स in at least one of the subject. Okay, at least means there is at least one student in each of the subjects so that none of the class is empty. 20 students pass in maths, 25 in physics and 16 in chemistry. Nice. maths में ज़्यादा पास, अच्छा physics में ज़्यादा किया. At most means maximum 11 students passed in both maths and physics. At most 15 is passed in both. At most 15 passed in both. देखो both वाला is this region, right? Now all 3 वाला is this बीच वाला region according to sets. द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन ऑल द 3. तो अब ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है क्योंकि आप सपोज ऑल द 3 वाले में जो पास किया सपोज दैट इज एक्स, M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C इज लेट्स से एक्स. तो अब मैथ्स एंड फिजिक्स में कितना आएगा? 11 माइनस एक्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट पास वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो 11 माइनस एक्स. सो यहाँ से एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8. ठीक है, अब तुम यहाँ से डायग्राम बना लो. तो जैसे ही डायग्राम बनाओगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उस इन्फॉर्मेशन से. ठीक है, अब x का 11 है तो अब तुम देखोगे x इक्वल टू 11 जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ठीक है, क्योंकि x अगर हम 11 ले लें यहाँ से x इक्वल टू 11 तो गिवन इन्फॉर्मेशन जो गिवन रहता है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. आप एक बार चेक कर लो. तो यहाँ से x इक्वल टू 10 आएगा और 10 से तुम देख सकते हो अगर 10 कॉमन है जो ऑल 3 सेक्शन में पास किया, सो इट विल बी 10 1 5 0 फिर मैक्सिमम 15 0 9. सो इट्स पॉसिबल. Okay, so hence the answer for this problem is x equal to. I have already told if a comma b is present, so b comma is. देखो एक तरीका है इसको सॉल्व करने का. If we have 1 2 3 4 and 1 2 3 4, so total how many relations you can make? ठीक है, ये देखो 1 comma 1 इसका मैट्रिक्स फॉर्म में सोचो 1 comma 2 1 comma 3 1 comma 4 these are ordered pairs. अब रिलेशन तो क्लियरली वी कैन मेक क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स जो आएगा वो तो 2 का पावर 4 आ जाएगा, राइट. अब इन एनी रिलेशन एनी ऑफ द
सेट विल बी आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट। तो वो तो हम बहुत सारा रिलेशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 2⁻16, ठीक है, क्योंकि सबसेट्स देखो ये एम्प्टी होगा या फिर 1 into और 1 4, सो एनी रिलेशन विल बी द सबसेट ऑफ दिस। अब इसका सबसेट कितना आएगा, इट हैज ऑलरेडी 16 एलिमेंट 2 का पावर 4, सो 2 का पावर 16 रिलेशन क्रिएट्स होंगे। लेकिन मुझे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक के लिए ये कितना होगा 4,1 4,4। So if you'll see this grid of 4x4 matrix, here on the diagonal we have element like 1 1 2 2 3 3 4 4। वन diagonal पे क्या है 1,2 है और यहाँ 2,1 है। Now if relation is symmetric but not reflexive, ठीक है, तो if relation is symmetric it means for every element 1,2 we must have 2,1, ठीक है। So whenever we have 1,3 we must have this element। तो अब देखो number of elements इस upper triangle में lower triangle में exactly same है, they are reflection of each other, so basically it's symmetric matrix। देख रहे हो ना, तो कितना एलिमेंट होगा टोटली 16, डायगोनल पे 4 है तो 12 में मीन्स यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 6 आया, ठीक। अब हाउ मेनी सिमेट्रिक रिलेशन विल बी देयर, सो इन सिमेट्रिक रिलेशन इफ 1,2 इज प्रेजेंट 2,1 प्रेजेंट देन 1,2 मस्ट बी, इट मीन्स अगर ये प्रेजेंट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। सो 2 का पावर 6 पॉसिबिलिटीज आया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का, राइट। ठीक है, लेकिन अब ये 2 का पावर 6 पॉसिबिलिटीज में ये रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो मैं इसके पास भी दो चॉइस है, आइदर 1,1 विल प्रेजेंट इन दैट रिलेशन और एब्सेंट, सिमिलरली ऑन द सेकंड डायगोनल प्रेजेंट इन एब्सेंट। तो यहाँ पे 4 मेंबर है, सो विल हैव 2 to the power 4 here, ओके। सो 2 का पावर 6 is the possibilities for alpha comma beta and beta comma alpha to come, and now on the diagonal again we have independently 2 into 2 into 2 into 2, so 2 का पावर 4 choice। So total number of relation which is either symmetric and reflexive means total number of symmetric relation कितना हो गया, which is 2 to the power 10। अब 2 का पावर 10 में ऐसा भी रिलेशन आएगा जो सिर्फ 1,1 है, 1,2 एंड 2,1 है, तो ये भी सिमेट्रिक है। अब कैसे सिमेट्रिक है, कोई बच्चा बोलेगा सर 1,2 इज प्रेजेंट 2,1 इज प्रेजेंट, यस। अब देखो इफ 1,1 इज प्रेजेंट देन 1,1 इज प्रेजेंट बिकॉज साउंड सेम फ्रॉम आइदर वेज, दिस आल्सो सिमेट्रिक। लेकिन अब इसमें से दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज फॉर रिफ्लेक्सिव एवरी एलिमेंट 1 2 3 4 मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो इसमें तो ये सिर्फ 1 रिलेटेड है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना आएगा, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विच आर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन विच आर रिफ्लेक्सिव, तो अब इसमें तो वील हैव लॉक चॉइस्ड बिकॉज वील हैव ओनली 1 1 2 2 3 3 4 और द रिमेनिंग है वो 2 का पावर 6। So 2 का power 10 minus 2 का power 6 is the number of relation which is symmetric but not reflexive because 2 का power 6 counts all the relation which is symmetric but reflexive also, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 और 4 4 is present, तो ये तो गारंटी हो गया रिफ्लेक्सिव है। अब तुम चाहो तो 1,2 प्रेजेंट है, 2,1 प्रेजेंट है, ओके। सो इन 2 का पावर 6 वी हैव सिचुएशन लाइक दिस वेयर दिस इज मैंडेटरी, ओके, बट इन 2 का पावर 10 वी कैन हैव एनी सिचुएशन। टोटल माइनस ही निकाल दिया एंड फ्रॉम एयर जो वैल्यूज आपको आएगा वो 960। सो दैट्स द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अगेन इट वाज अ गुड प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ए इज 1 2 3 4, आई इज अ रिलेशन, एस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है। अब देखो अगर ए 1 2 3 4 है तो अगेन रिफ्लेक्सिव के लिए तो ऑल 4 एलिमेंट मस्ट बी देयर, ऐसा रिलेशन है। Now we want reflexive relation where 1,2 is present। अब 1,2 है तो इसका भाई आ जाएगा 2,1, ठीक है। Now 2,3 is present, so इसका भी भाई आ जाएगा 3,2। Now 1,4 is present, so इसका भी भाई आ जाएगा 4,1। Now since 2,1 is present and 1,4 is present, so 2,4 will also come into picture। अब देखो सब कॉम्बिनेशन आ जाएगा। कैसे 2,3 is present, 3,2 is present, so 2,3 is there, right? Now which combination is missing here? Let's say 1 3, okay, and 3 1. So how 3 1 will come? Because 3,2 is present, or देखो 2,4 is present, so because of that 3,4 will also be present, right?
1,2 is present, 2,3 is present. 1,2 and 2,3. So this will give birth to 1,3. Now 1,3 is present, तो डेफिनेटली 3,1 present. देख रहे हो, मजा आ रहा है. इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से सबका सब एलिमेंट आ गया. तो कितना एलिमेंट इस सेट में हो जाएगा, जो भी पॉसिबिलिटीज है ऑल एलिमेंट्स इसमें आ गया ना, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑर्डर्ड पेयर से 1,2 2,1 2,3. सो सबका सब जो सेट्स है, सबसेट है इस सेट ए का, मीन्स ऑल रिलेशन, ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑन 1 2 3 4 सब आ गया. सो इट इज 2 × 2 × 2 × 2 16 चॉइस. सो ऑल दो 16 आंसर. इनफैक्ट आप इसको काउंट कर सकते हो और वो आंसर राइट. 16 चॉइस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो, जब तुम ये 16 चॉइस में सिर्फ 1 ले रहे हो, 1 रिप्रेजेंट्स 1,1. अगर 1 3 आ रहा है पिक्चर में वो सबसेट में, तो इट मीन्स 1 3. ठीक है, 1 3 एंड 3 1. इफ 1,4 आ गया तो 1 4 एंड 4 1, या फिर तुम ऐसे डायरेक्ट काउंट कर लो. ठीक है, सो दिस विल गिव द आंसर 16. एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन. A is a set of again 100 elements. R is a relation defined by x, y is related to R if and only if 2x is 3y. R is a symmetric relation on A such that R is subset of R1. Okay, R1 is symmetric so that R is subset of R1. The number of elements in R1 is n number below. अब देखो फिर ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन. A is having 100 element. ठीक है, R is a relation on A defined by x, y is related to R if and only if 2x equals 3y. R1 be a symmetric relation on A. यहाँ पे I can play again if x equals, so x must be 3y by 2 right, or I can tell y must be 2x by 3. तो x तो 3 का मल्टीपल होना होगा. So if x is 3 y is 2, if x is 6 y is 4, if x is 9 y is 6. ऐसे करते करते if x is 99 y is 66. ये हो गया, ये तो R का स्टोरी है. ठीक है, ये R हो गया. Now what we want, R1 be the symmetric relation on R such that R is a subset of R1. ठीक है, अब R अगर R1 का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, तो एक रिलेशन R1 है जो कि सिमेट्रिक है. ठीक है, सच दैट इस R1 का सबसेट जो है वो ये सेट है 3,2 3,0. देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1. ओके, सो द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1. तो ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि देखो, अगर R1 से R को हम क्रिएट कर सकते हैं सच दैट R1 इज सिमेट्रिक. तो R1 सिमेट्रिक है, तो R1 में अगर 3,2 होगा तो 2,3 को होना ही होगा. R1 में अगर 6,4 होगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर सबसेट है तो इस मीन्स दिस एलिमेंट्स 3,2 6,4 9,6 दिस मस्ट बी प्रेजेंट इन R1 गारंटीड. तो बट वेन एवर 99,66 इज प्रेजेंट, अब सिमेट्रिक के कारण 66,99 मस्ट बी प्रेजेंट. वेन एवर 3,2 इज प्रेजेंट, तो इसका एक इमेज 2,3 मस्ट बी प्रेजेंट. अगर ये R1 में है तो 4,6. तो कितना एलिमेंट R1 में, 33 एलिमेंट. सॉरी, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन R? 33 एलिमेंट्स. हाउ मेनी एलिमेंट्स विल देयर इन R1? एवरी एलिमेंट का एक उल्टा इमेज होगा, गोलू गोलू का गोलू गोलू. सो दिस विल कंटेन नाउ 3,2 2,3 6,4 4,6 9,6 6,9. डबल हो गया. सो 66 इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. Okay, so I hope you have enjoyed the session, and moreover this was effective, and I can give you guarantee यहाँ पे with full responsibility जो similar model का ही questions आपके JEE Mains April session में आएगा. And if you have understood this properly, you can solve each and every question. Thank you. Have a good day. Please do like and subscribe the channel because it takes effort. Apart from my own class schedule, I take away time and give you special ideas.